Okay, class 6, good morning. Yesterday we were on translucent, the properties of material. Okay, beta. So in properties of material, we have discussed the property of appearance, the property of hardness, solubility, and we were discussing the property of transparency, in which we have already studied that the materials which allow light to pass through them are called as transparent materials. For example, glass, air, and water. And the materials which do not allow light to pass through them at all, उनमें से बिल्कुल light pass नहीं होती, they are called as opaque materials. For example, you can say wood, hard plastic, wall, and tree. All these are examples of opaque objects. Now coming back to translucent object. What are translucent? I hope you have done the activity which I told you to do in the previous class. ठीक है, तो translucent objects are those objects, the materials through which objects can be seen but not clearly. Okay, for example, I have told you to put some oil on the paper, just spread it over the paper and try to see through the bulb. Okay, so you can make out the bulb but you cannot see the clear picture of the bulb like you can see through it with the help of a glass. जैसे आप ग्लास की हेल्प से या एक प्लेन पेपर की हेल्प से बल्ब को देख पाते थे, वैसे जब आपने पेपर के ऊपर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाले, उसको स्प्रेड किया थ्रू आउट, फिर आपने उसको देखा तो आपको बल्ब क्लियर नहीं दिखाई देगा. ठीक है, ट्रांसलूसेंट का मटेरियल का एग्जाम्पल है बटर पेपर जो होता है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल का. बटर पेपर के थ्रू हम मेक आउट तो कर सकते हैं कि उस तरफ चीज क्या है, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली सी व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर. ओके, फॉर दैट चिल्ड्रन वी कैन डू अ स्मॉल एक्टिविटी आल्सो. Here I don't have torch right now at your home. Just take out your torch like this. ठीक है, place your hand on the torch. टॉर्च को ऑन करके, इफ यू कैन सी द फ्लैश, टॉर्च को ऑन करके आप एक बार उस पर अपना हाथ रखिए. ठीक है, इफ यू कैन सी द रेज ऑफ द लाइट कमिंग आउट, नो. अगर जब आप टॉर्च के ऊपर उसको ऑन करके अपना हाथ रखोगे तो आपको रेज जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देगी. ठीक है, आप एक पेपर को अगर रखोगे, सपोज आई एम कीपिंग दिस पेपर. Children, here I don't have the torch, I am using the flashlight of my phone, but at your home you should use the torch for doing this activity. पहले केस में we had put our hand on the flash. Okay, we cannot see at all the light, we cannot see at all. But if we have taken the paper, once we place it on the flash, or you can say the light of the torch, you can see the light a little bit. आपको थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी. ठीक है, तो पहले वाले केस में जो हमारा हैंड था वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था. आवर हैंड वाज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. एंड इन द सेकंड केस जब हमने पेपर को रखा, ठीक है, तो वो एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल था, मतलब आप क्लियरली नहीं देख पा रहे थे बट आप थोड़ा पार्ट देख पा रहे थे लाइट का. तीसरे पार्ट में आप एक ग्लास को रखेंगे, बहुत पतला ग्लास, तो आप क्लियरली जो टॉर्च का फ्लैश है उसको देख पाएंगे. ओके, सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम by using the torch. First part में आपको you have to place your hand on the flash of the torch. ठीक है, आप उसमें देखोगे, you will observe that you are not able to see the flashlight of the torch. In second part you have to keep a paper on the flash. ठीक है, आपको थोड़ा सा पार्ट जब आप पेपर रखोगे तो you will be able to see a little bit of the flash, not clear. तो first case में our hand was an opaque material. Why? Because it does not allow, it has not allowed the light to pass through our hand. In second case, the paper was a transparent material. It was allowing the light partially through it. Partially मतलब होता है थोड़ा. आप थोड़ा, जो word partially है that literally means थोड़ा. You can see a part but not clearly make out what is there on the. So children, in the activity of the torch, on the first part we have put our hand. तो हमारा जो हाथ था वो एक ओपेक मटेरियल की तरह था. ठीक है, सेकेंड पार्ट में when we have taken a paper, तो हम ये देख सकते थे कि हमें जो फ्लैश है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो हमारा जो वो
paper का was translucent, and in the third case when we put a glass, ठीक है, एक पतला सा ग्लास आप अपने टॉर्च पे रखो, you can clearly see the light coming out of it. So 8 क्लास के लिए साथ So the materials through which object can be seen but not clearly are called as translucent. जिसमें से हम थोड़ा सा देख पाते हैं but completely नहीं देख पाते are called as translucent materials. Okay, now moving on, we can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. ठीक है, we can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. Opaque are the materials which does not allow light to pass through them. Light cannot be passed through them, hence we cannot see through opaque materials. Transparent material में क्या होता है? Transparent material allows the light to pass through them, so we can clearly see through the transparent material. For example, air, water and glass. And in translucent material we can see partially, हम थोड़ा सा देख सकते हैं but not clearly. ठीक है, the word partially means not completely but थोड़ा सा हम देख सकते हैं उससे. पहली से just covering the glass of the torch, ये एक्टिविटी बेटा मैंने अभी आपको टॉर्च से नहीं लेकिन अपने फोन के फ्लैश लाइट से करके बताई. फर्स्ट केस में आपको स्विच ऑन करके टॉर्च का अपना हाथ रख के देखना है. सेकेंड केस में पेपर रखना. थर्ड केस में आप एक ग्लास को रख सकते हो. ओके, so we learned that materials differ in their appearance and the way which they mix in water. appearance की प्रॉपर्टी पहली थी हमने जो पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में. The first property was appearance. ठीक है, first property was appearance. Second property was hardness. Hard materials और soft materials में हमने अलग अलग किया था, अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी. The third property was solubility, whether the material is soluble in solution or not. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने अपीयरेंस में ये जज किया था कि कौन से मटेरियल स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं और कौन से रफ होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी थी हार्डनेस. इसमें हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, सॉफ्ट मटेरियल्स की और हार्ड मटेरियल्स की. ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल वाज कॉटन, स्क्रबर, स्पंज एंड हार्ड मटेरियल्स में वुड. ठीक है, ऑल द मेटल्स कम अंडर दी हार्ड मटेरियल्स कैटेगरी. थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव स्टडीड वाज ऑफ सॉल्युबिलिटी. दो तरह के हमने एक्सपेरिमेंट किए थे. पहले हमने सॉलिड्स को मिक्स किया था लिक्विड में. हमने पहली एक्टिविटी में सॉल्ट, शुगर, सॉडस्ट, सैंड को वाटर में मिक्स करके देखा. फिर हमने ये उसमें से अपना कंक्लूजन किया कि सिर्फ सॉल्ट और शुगर जो थे वो वाटर सोल्यूशन में मिक्स हुए. ठीक है, सो ओनली फ्यू आर मिक्सेबल इन वाटर. ठीक है, तो दोज materials which are miscible in water were called as soluble. जो पानी और solution में mix हो रहे थे they were called as soluble. तो examples of soluble were salt and sugar. And कुछ materials ऐसे थे that were not miscible. ठीक है, जो mix ही नहीं हुए, वो पानी में as it is या तो float कर रहे थे या तो डूबे दिखाई दे रहे थे. वो कौन से material थे? They were insoluble materials. For example, sand was there. Sand was insoluble. ठीक है, ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल हमने देखा था कल वो भी insoluble नहीं था. इट वाज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. ठीक है, एंड विनेगर वाज मिक्सेबल. विनेगर जो था वो सॉल्यूशन में मिक्स हो गया था तो विनेगर जो है वो सॉल्युबल हुआ क्लियरली. और उसके बाद जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स पढ़ी वाज दैट व्हाट वाज दैट इट वाज ट्रांसपेरेंसी. उसमें भी हमारे पास 3 कैटेगरीज थी. सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू व्हिच light can easily pass. If light can easily pass through it, we can see the objects kept on the other side of the transparent material. Second property हमने पढ़ी थी वो है opaque की. Opaque जो materials होते हैं that does not allow light to pass through them at all. उनके आर पार हम लोग
बिल्कुल भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन वुड, ठीक है, वुड लिया था हमने, मेटल्स लिए थे, आयरन का बॉक्स अगर पड़ा है तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। वुड अगर रखी है, वॉल है, ठीक है, इसके थ्रू लाइट पास नहीं होती, सो वी कैन नॉट सी व्हाट इज केप्ट ऑन दी अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड मटेरियल, थर्ड property was translucent. Translucent property beta is a mixture of transparent and opaque, यानी हम उसमें थोड़ा सा देख पाते हैं but clearly we cannot make out what is kept, ठीक है, partially we can see. So this finishes our chapter. These are the keywords. The first word is hard. We have divided the objects into hard materials and soft material. Hard material वो होते हैं जो which have a fixed shape, ठीक है, hard materials की fixed shape होती है. For example हमने brick को देखा था, brick को आप उठाओ अपने हाथ में, उसको लो, will you able to compress it, जिसको हम लोग compress नहीं कर सकते, जिनकी shape fix होती है. Not hard materials are fixed and they are not compressible. What are they? They are not compressible and they are fixed. उनकी shape को you cannot change the shape of hard materials. Now what are insoluble? Those materials which does not dissolve. Insoluble materials does not dissolve in any solution. किसी solution में dissolve नहीं होंगे. Either they will float or they will sink, but they will not dissolve in the material. ठीक है? So the third was lustre. Lustre means shine. Lustre means shine. ठीक है? Those materials which have shine on their surface, which are smooth, which are polished, are known as lustrous materials. ठीक है? Lustre simply means shine. So those materials which have smooth surface, shiny surface, चमकता हुआ polished surface होता है, like the ornaments which we wear, the utensils which we use, they are all called lustrous materials क्योंकि they are shine, their surface is smooth. ठीक है, तो all of them are called as lustrous material. So the next keyword which we learned in this chapter was material. So material is anything which is used in making of a substance. किसी भी substance को, किसी भी object को बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, we named it as material. For example, I have told you the example of wood. ठीक है, आपको एक लकड़ी का टेबल बनाना है, तो जो wood उसमें यूज हुई है, जो उसमें कील यूज हुई है, जो भी स्टैंड को बनाने के लिए लोहा यूज होगा, आयरन यूज होगा, ऑल दैट इज व्हाट, ऑल दैट इज द मटेरियल ऑफ व्हिच इज यूज्ड इन मेकिंग द वुड. ठीक है, वुड टेबल. नेक्स्ट वाज ओपेक. ठीक है, ओपेक आर दोज मटेरियल्स व्हिच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. Since they do not allow the light to pass through them, so hence we cannot see what is kept on the other side of the opaque materials. ठीक है, for example अगर आपके सामने एक बड़ी सी दीवार है, हमने ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर दिए हैं, बट नाउ वी आर वाइंडिंग अप द चैप्टर अगेन, सो वी आर डिस्कसिंग द keywords which we have learned in the chapter. Okay, so opaque materials are those materials which does not allow light to pass through them. तो किस मटेरियल से हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे? ओपेक मटेरियल से. ठीक है, रफ सरफेस होता है, इस रफ सरफेस इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ शाइनिंग सरफेस. ठीक है, खुरदुरा जो होता है, जो अनपॉलिश्ड होता है, जिसमें शाइन नहीं होती, वो होता है रफ सरफेस. रफ सरफेस को हमें नॉन लस्टरस सरफेस भी बोल सकते हैं. रफ सरफेस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नॉन लस्टरस. उसमें लस्टर नहीं है, चमक नहीं है उसमें कोई. ठीक है, तो इन साइंस वी नेम्ड इट एज नॉन लस्टरस व्हिच हैव नो शाइन, नो चमक एंड अनपॉलिश्ड सरफेस. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर दोज व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली. ठीक है, उनमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, बट द लाइट पासेस थ्रू देम पार्शियली. Okay, and the last keyword of this chapter is transparent. Transparent materials are those which allow light to pass through them. Hence, we can clearly see through transparent materials. For example, we have glass. ठीक है, glass is there, air is present everywhere, so air is also categorized as a transparent material. Why? Because air is present everywhere and we can see
थ्रू इट, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है एंड वी कैन सी थ्रू इट, सो एयर इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज ट्रांसपेरेंट मटीरियल. ऑलराइट, वाटर इज ऑल्सो an example of transparent material. Okay class, so this finishes our chapter. In the next class we will be doing our exercise. Okay, this is the summary is left. So let's discuss the summary of the chapter. Okay, objects around us are made up of large variety of materials. हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं. बी, अगर आप अपने रूम में, तो अपने रूम की यू जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर रूम, ठीक है, आपको आपका बेड दिखेगा, आपका स्टडी टेबल दिखेगा, योर बुक्स, ठीक है, योर क्लोथ, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल मटेरियल्स. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. एक चीज, एक ही मटेरियल से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक वुड एज अ मटेरियल, तो आप वुड से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. यू कैन मेक टेबल, ऑलराइट, यू कैन मेक टेबल, चेयर, योर सोफा यू कैन मेक फ्रॉम इट, ठीक है, बेड कैन बी मेड फ्रॉम वुड एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी मेड फॉर अ सिंगल मटेरियल. एक सिंगल मटेरियल से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं. It is also possible that object could be made of a single material or of many different kind of material. ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आप एक मटेरियल से भी एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हो और बहुत सारे मटेरियल यूज करके भी आप एक टेबल बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सोफा बनाना है तो हमें सोफा बनाने के लिए क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू मेक सोफा इज वुड, ठीक है. फिर आपको एक कॉटन की मैट्रिक्स चाहिए होगी, जो गद्दा जिसको आप कह सकते हो, ठीक है. आपको कील की जरूरत पड़ेगी टू फिक्स इट ऑल, ठीक है. तो ये हमारे पास एक सोफा को बनाने के लिए वी हैव यूज्ड डिफरेंट मटेरियल्स लाइक वुड, कॉटन और नेल, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. चिल्ड्रन, हमने जैसा आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक दी एग्जाम्पल ऑफ रेन. रेनी सीजन हो चल रहा है. रेनी सीजन में वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन, सो हम लोग रेनकोट पहन के जाएंगे. तो रेनकोट क्या हम पेपर की यूज करेंगे? नो. व्हाई? बिकॉज इफ वी वेयर अ रेनकोट मेड अप ऑफ पेपर, वी विल जो हम है, अगर हम पेपर की रेनकोट पहन के बाहर जा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है वो गीली हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज पेपर इज नॉट अ मटीरियल विच विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. तो हमें राइट चीज के लिए राइट मटीरियल यूज करना है. ओके, सम मटीरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट. जो कुछ मटेरियल्स होते हैं दे आर शाइनी, उनको हम लोग लस्ट्रस कहते हैं, एंड सम आर नॉट शाइनी, जिसे हम लोग नॉन लस्ट्रस कहते हैं. सम आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट. जो हार्ड मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल वुड, metals, these are all your hard materials, and soft material is like cotton, your scrubber and many other things. Sponge is a small example of soft material. Some materials are soluble or in water and some are insoluble. This is the property of insolubility, which states that some materials are soluble in water. जैसे soluble क्या क्या हुए थे? Salt हुआ था, sugar हुआ था, vinegar हुआ था, lemon juice हुआ था. These were all soluble, and insoluble were sand. Your sand was insoluble, ठीक है. Sawdust was insoluble. Then you have your oils are insoluble in water. Some materials such as glass are transparent. And some others are wood. Metals are opaque. ठीक है, कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, एंड सम आर ट्रांसलूसेंट, ठीक है. तो ओपेक वाले क्या होते हैं? वुड होता है, जो हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करता देखने के लिए. ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास, थ्रू विच वी कैन सी वेरी क्लियरली, एंड ट्रांसलूसेंट आर वो मटेरियल्स जिनसे हम पार्शियली देख सकते हैं. मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स की हम लोग कैटेगरीज को कैसे बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. उनमें क्या एक जैसा है, ठीक है. अगर दो चीजों में एक जैसा है तो उनको उठा के एक ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है. और जो चीजें डिफरेंट होती है उनको उठा के हम दूसरे ग्रुप में डालते हैं. तो इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन भी बोलते हैं. थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. और हम ये अलग अलग क्यों करते हैं? जैसे दो लोगों की एक जैसी प्रॉपर्टी है तो हम उनको फ्रेंड्स बना देते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है? हमें स्टडी करने में, टू अंडरस्टैंड द मटेरियल, इट बिकम्स इजी for us to
ठीक है. So children, in our next from session we will discuss about the properties. Sorry, we will discuss the question and answers of this chapter. Okay. These are the question and answer which we will be discussing in our next class, and the solution answers I will provide to you in the same format as I have provided in the maths class. So don't worry, you have to just write it down once we have discussed all this in the class. Thank you.